I want to go to my debate number 2. When I first heard about this, I couldn't believe it. But this is the story in brief. In Himachal Pradesh, the chief minister decided to have samosas, and they ordered 3 plates of samosas from a 5-star hotel. I can't believe I'm narrating the story like this, but believe me, this is the fact. The chief minister of Himachal Pradesh wanted to have samosas. 3 plates of samosas were packed from a 5-star hotel for his consumption. First of all, when the state is bankrupt, why are you calling for samosas from a 5-star hotel? Anyway, after that, by some mistake, the samosas reached his staff instead of him. The chief minister was so angry that the state government decided to institute a CID inquiry into how the chief minister's samosas went for someone else. As ridiculous as this sounds, this is a real controversy. As ridiculous as it sounds, the chief minister of Himachal Pradesh constituted a CID inquiry into why someone else ate his samosas. This is what happened. A samosa has stirred up a storm in Himachal Pradesh, turning into a sizzling recipe for political drama. The order meant for Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu from a 5-star hotel apparently ended up on the wrong plates, adding a whole new layer to the mix-up. And what happens next? Whispers of a CID probe emerge, raising eyebrows across the state. It all began with a trio of snack boxes ordered as refreshment for Chief Minister Sukhu, but these samosas found their way to Sukhu's staff instead. It so turned out that one high-rank officer who was in CM's snack plan and handed off the order, leading to a classic communication meltdown. Soon, the snacks intended for the state's leader ended up in the hands of logistics staff. पहले पूरी जो डीजीपी ने बयान दिया उसको आप देख लीजिए और मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें हुई है, दोबारा कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन लोटस के बाद जीत कर आई है, तो एक टारगेटेड कैंपेन चल रहा है. What should have been ignored has now ballooned into a full-blown political brawl between the BJP and the Congress party. किस प्रकार की सोच भी कांग्रेस रखती है. अगर समोसा परोसे जाने पर गलती से एंटी गवर्नमेंट कृत्य बताती है तो ये कितनी टॉलरेंट है, ये गवर्नमेंट कितनी प्रोग्रेसिव है, ये गवर्नमेंट कितना बिना विद्वेष की भावना से काम करती है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. यही कांग्रेस का मॉडल है, खटाखट मॉडल. Even the DGCID downplayed the incident, calling it an internal affair and accusing the BJP of stirring up trouble for a minor slip-up. इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है. मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए. From a few samosas to a statewide rage, this samosa scandal reflects the misplaced priorities of the already bankrupt Congress government in Himachal Pradesh. Kaushal Mungta is the Congress spokesperson from Himachal Pradesh. Jairam Thakur, former Chief Minister of Himachal Pradesh, is it true that there is a CID inquiry on how 3 boxes of samosas that have been bought from Hotel Radisson Blu for the consumption of Chief Minister Sukhu were given to some members of his staff? You are saying that there is a CID inquiry. What is your information on the CID inquiry into the missing samosas? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है. अब ये समोसे जो हैं इस पर आप कह रहे हैं CID इंक्वायरी हुई है, क्या है? अर्नब जी, ये बहुत हम हिमाचल वासियों के लिए तो बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है. एक प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार का जिम्मा
बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े मुद्दे उनके सामने है, लेकिन उसके बावजूद वो समोसे पर इंक्वायरी कर रही है। और मुख्यमंत्री जी का पुलिस हेडक्वार्टर में जाना हुआ, किसी फंक्शन में जाना हुआ, स्वाभाविक रूप से चाय नाश्ता का इंतजाम होता है वहां पर जी। और 5 स्टार होटल जो जिसका जिक्र किया आपने, वहां से समोसे मंगवाए, लेकिन समोसे जहां पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, कहीं और चले गए, किसी और ने वो समोसे का उपयोग कर लिया जी। और उसके बाद बात ये हो गई कि अगर समोसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन समोसे कहां चले गए इस पर सीआईडी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई और सीआईडी इंक्वायरी के बाद फिर दिलचस्प बात यह है कि 5 जो है वहां पुलिस के हमारे कर्मचारी, उनके नाम उसमें जिक्र किया गया है, इनके पास ऐसा करके सारी चीजों का उसमें जिक्र आया और ये कहा गया कि ये समोसे जहां पहुंचने चाहिए थे नहीं पहुंचे, तो ये एक तरह का ये एंटी गवर्नमेंट जो है एक प्लान है। ये बड़ी हैरानी हो रही है हम इस बात को लेकर कि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को हो गया एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी। तो मेरा सवाल फिर कौशल मुंगटा जी से है। कौशल जी, अगर समोसे का प्लेट जो है या जो बक्से हैं जिनमें समोसे हैं और समोसे के साथ जो भी और आहार था, अगर किसी और ने खा लिया तो क्या बड़ी बात है? अगर सुक्खू जी को समोसे नहीं मिले, ये इतना बड़ा विषय कैसे हो जाता है? और अगर किसी और सरकारी कर्मचारी ने सुक्खू जी के समोसे खा लिए तो इस पर इतनी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है? चलिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको नमस्कार, अदब के साथ में उनको नमस्कार भी करता हूं और आपका जवाब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक छोटी सी लाइन से देना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीति हमेशा आदर्शों की होनी चाहिए, मूल्यों की होनी चाहिए, उच्च आदर्शों की, उच्च नियमों की और शिष्टाचार की होनी चाहिए। परंतु मुझे बहुत ही हास्यास्पद और बचकाना लग रहा है कि देश का राष्ट्रीय मीडिया जो है समोसे पर डिबेट करवा रहा है। फिर भी आपने जब प्रश्न पूछा है तो मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि डीजी सीआईडी ने भी आज इस बात को स्पष्ट किया है और सरकार की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार की कोई सरकार की तरफ से कार्यवाही के लिए नहीं लिखा गया, ये इंटरनल मैटर था सीआईडी का। अब मुख्यमंत्री क्या कौन सी चीज इंटरनल मैटर थी? नहीं, मुझे बात बताइए। देखिए कौशल जी, मेरी बात सुनिए। आप जो कह रहे हैं ये समोसे पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई ये सीआईडी की इंटरनल मैटर है और मैं आपसे विनम्र पूर्वक बिल्कुल मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर एक सरकार समोसे को लेकर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करे तो क्या सरकार का और कोई काम नहीं है? आपने ये नहीं कहा कि समोसे पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, आपने कहा कि हमारी इंटरनल मैटर नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो क्या हुई? और मुख्यमंत्री को अगर किसी कार्यक्रम में जाना है, वहां पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके स्नैक्स के लिए क्या मंगवा रहा है और वर्बली आफ्टर मीटिंग को अगर बोल देते हैं कि भाई जो चीज मंगवाई गई थी वो क्यों नहीं आई, तो इस पर मुख्यमंत्री का इससे क्या लेना देना? वर्बली का मतलब आप कह रहे हैं कि समोसे पर डिबेट हुई। आप नहीं राष्ट्रीय, मैं ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले आप ये बताइए, आप ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वहां पे जो सीआईडी हेडक्वार्टर में उनको समोसे नहीं मिले, इस पर बहुत गंभीर डिबेट हुई कि मुख्यमंत्री को रेडिसन ब्लू के समोसे क्यों नहीं मिले और कुछ नहीं है? नहीं है। आप मुझे हिमाचल प्रदेश के जितने लोग हैं रिपब्लिक देख रहे हैं वो क्या कहेंगे कि आज हिमाचल प्रदेश में सीआईडी इस बात की तहकीकात कर रही है कि 5 स्टार होटल के समोसे सुक्खू जी को क्यों नहीं मिले? ये औपचारिक और अनौपचारिक इंटरनल एक्सटर्नल की बात नहीं है। इसमें अर्नब जी, ऐसा मेरा उसमें एक चीज को लेकर के कहना है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ कि रिपोर्ट पुलिस की सीआईडी की रिपोर्ट आती है, ये जो वायरल हुआ है डॉक्यूमेंट, ये सीआईडी की रिपोर्ट है। किस पर? और समोसा गायब हुआ। नहीं, कहां चला गया? आप कह रहे हैं सीआईडी की रिपोर्ट है समोसे पर? समोसे अर्नब जी, दिलचस्प बात तो ये है कि हैरानी इस बात पर, ये विषय नहीं मुख्यमंत्री जी को समोसा खाना या नहीं खाना, ये तो कोई विषय नहीं है, लेकिन सीआईडी को कोई और काम नहीं रहा है क्या? हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं,
आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में स्कैम के एक के बाद दूसरा स्कैम हो रहा है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्कैम से भरा पड़ा हुआ है, आपके पावर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसकी जांच नहीं हो पा रही। लेकिन कौशल जी वापस आइए, आपकी वीडियो कट गई है। कौशल जी आप अपने वीडियो को सीधा कर लीजिए प्लीज। ये बात ये है कि और ये कौशल जी एंटी गवर्नमेंट और उसके बाद ये साथ में ये बात कहना कि एंटी गवर्नमेंट एक्शन है ये बताइए, तो हाँ, ये कहा, किसने कहा कि सरकार के विरुद्ध कार्रवाई काम की गई है कि किसी ने सुक्खू जी के समोसे खा लिए? ये किसने कहा? कहाँ लिखा है एंटी गवर्नमेंट? मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी के बीच बोलना नहीं चाहता, छोटे मुंह से बड़ी बात करना भी नहीं चाहता, परंतु मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि राष्ट्रीय में हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ तो विश्व में थपथपाता है। हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी की पीठ तो शांता कुमार जी जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वो थपथपाते हैं। हमने आप तो में अच्छा काम किया, इस बात पर कभी चर्चा नहीं हुई। तो यहाँ बात तो एक चीज है कि जो इशू प्रॉपर हुआ, क्या हिमाचल प्रदेश में कोई और काम रह नहीं गया? क्या सीआईडी को यही काम रह गया है? गवर्नमेंट को यही काम रह गया है समोसे पर इंक्वायरी करने का? यहां हिमाचल प्रदेश में आप देखो एक के बाद सीरीज ऑफ डिसीजन अगर आप देखेंगे अर्नब जी, आप देखो टॉयलेट टैक्स कितनी बड़ी एक तमाशा बन गया है पूरे देश भर में। एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ पर टॉयलेट गिने जा रहे हैं, 4 हैं तो 100 रुपए देना पड़ेगा, 25 रुपए एक टॉयलेट के हिसाब से। फिर बाद में मुकर जाते हैं कि ये नहीं कहा हमने। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि हिमाचल प्रदेश में बसों में ट्रैवलिंग करने के लिए 5 किलो का वजन है तो उसका आधा टिकट, उसका 1/4 किराया लगेगा, इससे ज्यादा होगा तो आधा लगेगा। तो ऐसी चीजों को लेकर के एक और कंट्रोवर्सी और कर दी, और अभी एक नोटिफिकेशन और कर दी हिमाचल प्रदेश में, जहां कहा कि 2 साल से जो खाली पद पड़े हैं वो सारे के सारे अबॉलिश किए जाते हैं। जब शोर पड़ा तो मुख्यमंत्री जी नई नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके कह रहे हैं। और अब समोसे पर आ गए। अरे काम करने के लिए चुना हुआ है, हिमाचल के लोग चाह रहे हैं कि सरकार बनी है तो काम करे। ये समोसे पर इंक्वायरी का विषय इसलिए गंभीरता का बन गया कि आज से पहले कभी भी पूरे देश में मुझे नहीं लगता कि इतनी हल्की सोच के साथ काम किया गया है और इतना अपरिपक्व होकर के, यानी कि मजाक बन गया हिमाचल प्रदेश का इन सारे डिसीजन की वजह से। चिंता का विषय तो ये है कि आखिरकार हिमाचल का एक तमाशा बना दिया, जो हमारे सबके लिए जो पीड़ा का विषय है। मैं ऑपोजिशन में हूं। अर्नब जी, अब क्या कहा जा रहा है कि समोसा जो है वो नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये एंटी गवर्नमेंट एक्शन है। अगर हमको समोसा दिया तो ऑपोजिशन को दिया होता तो हम समझ लेते, लेकिन कोई बात नहीं। इस बात को लेकर के इतना शोर डालने की आवश्यकता नहीं थी कि भाई इस पर इंक्वायरी की जाए। बहुत सारे मामले हिमाचल प्रदेश में इंक्वायरी के लिए किए जा सकते थे, लेकिन उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही है। लेकिन छोटी सी बात पर समोसे पर इंक्वायरी हुई, ये सचमुच में बहुत हैरानी का विषय। पर कौशल जी आप इस बात से आप नहीं कह रहे कि समोसे पे इंक्वायरी नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि क्या ये कोई बड़ी बात है कि नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सीआईडी ने खुद कहा है कि ये अंदरूनी मामला है। इन्होंने नहीं कहा कि ऐसी चीज नहीं हुई। आपके सीआईडी ने कहा है हुई, मगर ये हमारा अंदरूनी मामला है कि सुक्खू जी के समोसे पर किस तरह की तहकीकात हुई। अरे भाई एक समोसा, कोई समोसे उनके समोसे कोई खा ले। कह रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मगर ये क्या आप राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं? मैं राष्ट्रीय मीडिया पर चर्चा कर रहा हूं। हमारा इंटरनल मैटर है। बर्बली मैंने आफ्टर मीटिंग कहा था कि भाई अगर कोई चीज मंगवाई है तो क्यों नहीं पहुंची। परंतु रही बात समोसा खाने और खिलाने की, सुन लीजिए अर्नब जी, रही बात समोसा खाने और खिलाने की, हमें विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जनता ने दी। आपके डीआईजी के नंबर 1 अफसर को और कोई काम नहीं है। आपके सीआईडी के सबसे वरिष्ठ अफसर का क्या यही काम है? मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, आपके सीआईडी के बॉस का यही काम है कि सुक्खू जी के समोसे कौन खा गया? बिल्कुल, ये बिल्कुल चर्चा का विषय नहीं है। सुक्खू साहब को इसका मालूम ही नहीं था। खाने दीजिए। और आप जो है भाजपा के लोग जो है देश के अंदर जब कोई मुद्दे नहीं बचते, सुक्खू जी के समोसे कुछ अलग टाइप के समोसे होते हैं क्या? करते हैं। हिमाचल के अंदर जब आपदा आई थी तब कहां थे आप लोग? जब हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे जो जहाज के अंदर आप हमारे विधायकों को उठा कर ले जाते हैं, मोदी जी के हिमाचल प्रदेश के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ बिजार सिचुएशन। नहीं उठाते। एंड आई विल टेल यू खटाखट एंड नाउ टॉयलेट टैक्स और समोसे पे सीआईडी इंक्वायरी।